morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 5th August 2021 and I am teaching you chapter number 6 and name of the chapter is Birds Our Feathered Friends. Birds our feathered friends. Okay. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. Birds are an indispensable part of a nature. So what does it means? It means they are very important part of the, you can say important, or you can also say they are the necessary part of the nature. ठीक है, जो प्रकृति में जो इतनी चीज़ें हैं उनमें से जो बर्ड्स हैं ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर है. एंड दे आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे आर आल्सो ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फूड चेन. फूड चेन ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो. द चेन विल शो दैट how plants are eaten by the animals and animals are eaten by other animals. ठीक है, food chain. So birds are also integral part of a food chain, and food chain you have already studied in the previous chapter में आपने food chain को already पढ़ रखा है कि a chain which show that how plants are eaten by the animals and animals are eaten by the other animals. That is known as food chain. Okay, so student, in previous chapter animal around us and in this chapter birds are our feathered friends. So what is the difference between that and these animals? All that animals that are land animals, they run, walk. But when we are talking about the birds, birds are also come in the category of the animals. But what is the special feature present in the birds is that they are able to fly. Special feature birds में क्या है, वो उड़ सकते हैं. They can fly. Okay, so 3 points we have already discussed in the previous video. In previous video we have already discussed 3 points. That is, birds have streamlined body. This shape help it to cut through the air. क्योंकि बेटा जो एयर है ना, एयर हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है. ठीक है, सो एयर का भी प्रेशर होता है थिंग्स पे. ठीक है, तो बर्ड की बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है. बर्ड की बॉडी इस तरह है कि they can very easily cut the air and they can fly. ठीक है, तो that is. और 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे. लेट टुडे वी स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट. द विंग्स आर अटैच्ड. द विंग्स आर attached to the body. Wings are attached. The wings are attached to the body with the help of help of powerful
muscles. So the wings are attached to the body with the help of a powerful muscles. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी स्टूडेंट, सो हाउ वी कैन ह्यूमन बॉडी है, हाउ द मूवमेंट इज पॉसिबल इन द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज मसल्स आर अटैच टू द बोन्स. और मूवमेंट्स कहाँ होती हैं, जहाँ पे जॉइंट्स, ठीक है. मूवमेंट्स कहाँ होती है बेटा, मूवमेंट्स वहाँ होती है जहाँ पे जॉइंट होते हैं. तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट हो रही है, दिस इज इफ देयर इज नो मसल इनसाइड आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी के अंदर मसल्स नहीं होती तो हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है. बिकॉज मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स एंड ड्यू टू दिस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी टेक प्लेस. ओके, इन द सेम मैनर इन द केस ऑफ द बर्ड्स द विंग्स आर अटैच्ड. विंग किससे अटैच टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल मसल्स. तो इसी तरह जैसे हमारी बॉडी में बेटा मसल्स होती हैं, तो बर्ड्स के बॉडी में भी मसल्स होती हैं, ठीक है. और विंग्स आर अटैच टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ए, और जो विंग्स हैं वो बॉडी से कैसे अटैच हैं बर्ड्स के, विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल मसल्स. और इन मसल्स की वजह से विंग्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है. मसल्स की वजह से जो बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट. विंग्स आर covered with wings are covered with different types of feathers, ठीक है. when I explain you about the feathers, okay, when I explain you about the feather of the birds, at that time I will tell you what do you mean by a down feather, what are the flight feathers and what are the body feathers. These all types of feathers are present in the body of the bird, ठीक है. डाउन फेदर भी होते हैं, बॉडी फेदर भी होते हैं और फ्लाइट फेदर भी होते हैं. फ्लाइट फेदर्स वो फेदर होते हैं जिनसे बर्ड क्या करता है, उड़ता है, फ्लाइट करता है. ओके, सो नेक्स्ट इज अ बर्ड टेल. नेक्स्ट पॉइंट इज a bird's tail help it to change its direction while flying. So now the question arises, when the birds are flying, then how they are able to change the direction. So at the time of flying, with the help of the tail, the bird's tail help them to change the direction at the time of flying. जो बर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे आप देख रहे हो बर्ड्स उड़ते उड़ते किधर भी घूम जाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. तो ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है? आपको तो लगता है बर्ड है, आईज आगे, माउथ है, बीक है, तो दे टेक ए टर्न विद दैट, लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो डायरेक्शन चेंज करते हैं फ्लाइंग के समय बर्ड्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, ठीक है. फ्लाइट के समय जो बर्ड्स अपने डायरेक्शंस चेंज करते हैं, दैट इज पॉसिबल टू द टेल ऑफ द बर्ड, ठीक है. और सारे बर्ड्स की टेल होती है, ठीक है. एंड दैट इज द रीजन विद द हेल्प ऑफ द टेल दे चेंज द डायरेक्शन एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग.
नाउ which नेक्स्ट टॉपिक विच एक बार मैं रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ बर्ड्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है बर्ड्स की, दैट इज द बीक्स ऑफ द बर्ड्स। सो डिफरेंट फीडिंग हैबिट, जैसे वहां पे था चैप्टर 5 में, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स द एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ओके, और according to the eating habit they are divided into three groups, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous animals, okay। now here all the birds have beaks, सारे birds की क्या होती है बेटा, beaks होती है, ठीक है। so the birds do not have teeth like us, हमारा ईटिंग ऑर्गन जो है वो माउथ है, वी टेक ऑल द फूड इन आवर माउथ, और बहुत से एनिमल्स हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा वो भी माउथ से ही खाना खाते हैं, ठीक है। सो आवर ईटिंग ऑर्गन दैट इज वी टेक फूड फ्रॉम आवर माउथ, बट इन केस ऑफ द बर्ड्स यू विल सी दैट द बर्ड्स हैव बीक एंड दे डू नॉट हैव टीथ, और हमारे जो माउथ है उसमें क्या है, टीथ है। डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, it depends which type of food we are eating, whether we are herbivorous, whether the animals are herbivorous, carnivorous or omnivorous। so according to the eating habit they have different types of teeth, but in the birds do not have teeth, जो birds होते हैं बेटा उनके teeth नहीं होते, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। birds के हमारी तरह teeth नहीं होते, ठीक है। तो birds का हमने क्या डिस्कस किया, सो बर्ड्स का हमने ये डिस्कस किया, बर्ड्स आर द एनिमल विच हैव फेदर्स, ठीक है, पंख होते हैं बर्ड्स के, बर्ड्स आर द एनिमल विच हैव फेदर्स एंड मैक्सिमम बर्ड्स कैन फ्लाई, बट देयर आर सम बर्ड्स आल्सो विच कैन नॉट फ्लाई, लाइक ऑस्ट्रिच है, ठीक है, पेंगुइन है, ये ऐसे बर्ड्स हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते तो बर्ड्स की कैटेगरी में है लेकिन ये उड़ते नहीं। So there are some birds which cannot fly, but when we are talking about the birds have a backbone, जैसे हमारी बैकबोन होती है बेटा, birds की भी क्या होती है, बैकबोन होती है, ठीक है। birds have also have a backbone, और इनके, ठीक है। और next is bird use their beak and claws to catch, hold and eat their food। so how the birds are able to eat their food with the help of their beak, ठीक है। सो हाउ दे आर एबल टू ईट, होल्ड और कैच एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स, क्लास, ओके। क्लास किसको बोलते हैं, जो पंजे होते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स में ये नेल्स है ना, हमारे नेल्स हैं, इसी तरह बर्ड्स के क्या होते हैं, बर्ड्स के जो पंजे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो इसी से वो चीज़ों को कैच करता है। बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो हंटिंग बर्ड्स होते हैं, जो दूसरे छोटे एनिमल्स को मार के खाते हैं, कार्निवोरस बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन दे कैच एंड दे होल्ड विद द हेल्प ऑफ देयर क्लास। सो नेक्स्ट है ए बर्ड, और ये सब डिस्कस किया, फिर हमने ये भी डिस्कस किया हॉलो बोन्स होती है, मतलब खोखली हड्डियाँ होती हैं, बीच में से खाली होती हैं, जिससे कि उनका वेट लेस हो। हमारी बॉडी का वेट कैसे हो, क्योंकि हमारी बोन्स का बहुत वेट होता है। तो जो बर्ड्स होते हैं इनकी बॉडी वेट क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। बर्ड्स का बॉडी वेट क्या होता है, लाइट होता है। लाइट बॉडी वेट होगा देन ओनली दे आर एबल टू फ्लाई इन द स्काई। सो दैट इज द रीजन द बोन्स जो होती हैं इनकी हॉलो होती हैं, ठीक है, खोखली होती हैं, खाली होती हैं अंदर से, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। और बर्ड्स क्या है, दे ले एग्स, ठीक है। हाउ दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ठीक है। अब जो बर्ड्स हैं वो अपने यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाई लेइंग द एग्स। तो अब वो लोग एग देने वाले जानवर में आए हमारे बर्ड्स, तो फर्स्टली दे मेक द नेस्ट, फर्स्टली वो लोग क्या बनाते हैं बेटा, नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो लोग क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, जिसे हिंदी में आप लोग घोंसला बोलते हो। बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि बहुत आपने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके गार्डन में कोई प्लांट लगाया है तो आपने देखे होंगे कि स्मॉल बर्ड्स उसमें नेस्ट बनाते हैं एंड दे ले एग इन दैट नेस्ट, ओके। सो हाउ दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस,
दे आर ओविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल्स उनको बोलते हैं बेटा जिनके यंग वंस किसमें से बाहर आते हैं, अंडों में से बाहर आते हैं, ठीक है। ओविपोरस आर दोज एनिमल्स दोज यंग वंस कम आउट फ्रॉम द एग, जिनके यंग वंस अंडे में से आते हैं उन्हें ओविपोरस बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मैमल्स हैं, और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो मैमल्स हैं, बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन, वो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं अपनी तरह की, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स भी हैं, कैट है, डॉग है, काउ, बेफलो, तो देयर आर मेनी एनिमल्स विच कम इन द कैटेगरी ऑफ ए मैमल्स। और एक स्पेशल बात ये भी है कि एक बैट इज अ बर्ड विच इज ए मैमल, बैट डोंट गिव एग्स। बैट एक ऐसा बर्ड है जो मैमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो क्या है, एग्स नहीं देता बाकी बर्ड्स की तरह, वो भी बर्थ देता है अपने बच्चों को। Is it clear? So bat is the bird which come in the category of a mammals. Now next topic which I will explain you, that is beaks. Beaks जो चोंच होती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बर्ड्स की जो चोंच होती है, that we say it beaks, the beaks of the bird. So beaks of the bird, first important point is birds do not have teeth, ठीक है। birds do not have teeth, okay, like human beings and other animals, bird do not have teeth, okay। And how they eat their food, they eat their food with the help of their beaks. They eat with the help, they eat with the help of their beaks. Okay, they eat with the help of their beaks. Now the most important thing is that different birds have different kinds of teeth. Now in this topic we will I will explain you that birds have different types of beaks. जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ थे, ठीक है, वहाँ हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ाए थे। एंड दिस इज ड्यू टू द ईटिंग हैबिट ऑफ द एनिमल्स। और ये टीथ में डिफरेंस क्यों था, ड्यू टू द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स थे उनको ज़्यादा शार्प टीथ की जरूरत नहीं थी। शार्प टीथ की जरूरत किसको है, कार्निवोरस एनिमल को, ओमनिवोरस एनिमल को, क्योंकि वो लोग फ्लैश खाते हैं। और कार्निवोरस के तो सबसे ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं, उनके फ्रंट टीथ बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बैक टीथ जो जाज होते हैं, जबड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि फ्लैश क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, उसको टेयर करना, चीरना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स खाने को कुक करके नहीं खाते, दे ईट द फूड रॉ, वो फूड को कैसे खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं, दे डोंट कुक द फूड। Is it clear? So that is the reason. Now when we are talking about the beaks, so birds do not have teeth, okay, and how they take their food, they eat with the help of their beaks, they eat with the help of their beaks, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसे कैसे होल्ड करते हैं, अपने बीक्स से, ठीक है। Then they eat with the help of their beaks. Now when we are talking about the beaks, so all the birds have different types of beaks. The birds have different types of beaks and it depends upon their feeding habit. और उनके beaks अलग अलग क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि they are, by reason is they are eating different types of food, ठीक है। So
different birds. Next point is different birds, different birds have different birds have different birds have different kinds of teeth. Okay, and what is the different birds have different kinds of teeth? अभी आप लोग को ये तो पता चल गया कि they eat with the help of their beak. So आप सोचो बर्ड्स के बीक का कोई और रोल भी है, कोई और रोल भी होता है बीक्स का? Yes, these beaks help the birds because at the time when they lay eggs, तो जब बर्ड एग ले करने से पहले क्या करते हैं? दे मेक द नेस्ट. ठीक है, बर्ड्स अंडे देने से पहले क्या करते हैं बेटा? दे मेक द नेस्ट. वो क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं. नेस्ट बनाएंगे तभी तो उसमें वो अंडे देंगे. तो फॉर दे विद द हेल्प ऑफ वो, अब उनके देखो कैसे होते हैं लीव्स को, लीव्स है, कॉटन है, ठीक है, वुल है, लीव्स, कॉटन, पेपर, क्लोथ. सो बाई दीज थिंग्स द ट्विग्स, ट्विग्स होते हैं छोटी छोटी लकड़ियाँ, पेड़ों की टहनियाँ कह सकते हो, छोटी छोटी लकड़ियाँ. तो यही सब चीज़ों का बर्ड्स क्या बनाते हैं? इन्हीं सब चीज़ों से बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं. जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट अभी इस चैप्टर में आएगा, देन आई विल टेल यू विच मटीरियल इज यूज बाय द बर्ड टू मेक द नेस्ट. कौन सा मटीरियल यूज करके बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं. यहाँ एक कंबाइंड डिस्कशन कर लेते हैं. जैसे कि बर्ड्स लीव्स भी यूज करते हैं, ग्रास भी यूज करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ ट्विग्स, ठीक, छोटी छोटी लकड़ियाँ, उनको भी यूज़ करते हैं. क्लोथ भी यूज़ करते हैं. सो पेपर यूज़ करते हैं. सो दीज थिंग्स आर यूज बाय द बर्ड्स, दीज थिंग्स आर यूज बाय द बर्ड्स फॉर मेकिंग देयर नेस्ट. सो विद द हेल्प ऑफ देयर beak they eat food also, and with the help of the beak they also make their nest. अपने बीक से ही वो अपना नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि नेस्ट बनाने के लिए जो चीज़ें उनको कैरी करनी होती हैं वो किसमें होल्ड करके लाते हैं? इन देयर बीक्स. ये ग्रास है, ये सारी चीज़ें लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें वो होल्ड करके किसमें लाते हैं बेटा? अपने बीक्स में लाते हैं. ठीक है, तो अब नाउ हियर व्हेन वी आर आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द बीक्स. तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के टीथ नहीं होते. सारे बच्चों को पता चल गया. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दे ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. वो कैसे खाना खाते हैं? अपनी बीक से खाते हैं. और व्हाट इज द अदर यूज ऑफ द बीक? दे मेक देयर नेस्ट. क्योंकि नेस्ट बनाते समय जो भी मटीरियल दे कलेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो भी मटीरियल है, जिन चीज़ों से वो घोंसला बना रहे हैं, तो उसके लिए जो भी मटीरियल वो सराउंडिंग से, अपने इधर उधर जो सराउंडिंग से चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, मटीरियल कलेक्ट कर रहे हैं, तो हाउ दे ब्रिंग दिस मटीरियल? विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स से अपना वो मटीरियल लेके आते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका बीक्स से. अनदर क्या है? टू डिफरेंट. अब देखो बीक्स में भी क्या डिफरेंस है? बीक्स में भी बहुत सा डिफरेंस क्या आ गया बीक्स में. अब देखो उनकी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट, उनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट होने की वजह से उनकी बीक्स क्या है? अलग अलग होती है. सो द सेम थिंग आई विल एक्सप्लेन यू due to eating habit or feeding habit how the birds have different types of beaks. So due to different eating habits, जो different eating habits हैं उनकी वजह से क्या होता है बेटा? eating habit उनकी different है. ठीक है, तो different eating habit की वजह से उनकी beaks जो है वो different है. ठीक है, अब one by one when we'll discuss, जब हम कुछ birds को discuss करेंगे then I will explain you.
Okay, now let's start with the first word, that is parrot has a strong curved beaks. ठीक है, ठीक है। अब देखो, दिस इज द बीक ऑफ द पैरोट। ओके, ठीक है। पैरोट की जो बीक होती है बेटा, ये कैसी होती है? कर्व्ड बीक होती है। पैरोट्स की बीक क्या होती है? कर्व्ड बीक होती है। इट्स वेरी स्मॉल बीक है। थोड़ा बना देता हूँ। ठीक है। सो दिस पिक्चर इज ऑलरेडी, दिस पिक्चर इज, ठीक है, ये पिक्चर ऑलरेडी आपके बुक में दी हुई है। ठीक है, दिस पिक्चर इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। आपके बुक में ये पिक्चर ऑलरेडी आपको दी हुई है। अब देखो, इसकी जो बीक है, बीक ऑफ द पैरोट की जो बीक है, पैरोट की जो बीक है, ये क्या ऐसी है? कर्व। इस टाइप की बीक है, कर्व बीक। इज इट क्लियर? सो द बीक ऑफ द पैरोट इज, जो पैरोट की बीक है बेटा, द बीक ऑफ द पैरोट, द बीक ऑफ द पैरोट इज कर्व है। ओके, नाउ व्हाट, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ ए बीक? तो पैरोट्स आप लोग देखते हो बहुत से फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, आप मैंगो ट्रीज में देख लोगे, बहुत से फ्रूट्स खाते हैं पैरोट्स। ओके, एंड दे आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स। ठीक है, पेड़ों के सीड के डिस्पर्सल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रॉम वन ट्री दे फ्लाई टू अदर ट्री। इन दिस मैनर आल्सो दे डू द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स ऑफ द fruit plants. Okay, now so which help it to crack open nuts and seeds. Nuts and seeds बोला है, nuts and seed. So अब nuts क्या है? जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, जो आप लोग ड्राई फ्रूट खाते हो, अखरोट भी खाते होगे, एलमंड्स भी खाते होगे, बादाम भी खाते हो, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उसके आउटर शेल को ब्रेक करने के लिए इनके जो बीक्स होती हैं वो कर्व्ड शेप की बीक्स होती हैं। ठीक है, सीड्स, सीड्स के बारे में आप लोग को मैंने चैप्टर 3 में भी बताया था। सीड्स जो होती हैं, प्लांट का होता है, बेबी प्लांट सीड के इनसाइड होता है, और सारे सीड्स की एक आउटर कवरिंग होती है जिसको सीड कोट बोलते हैं। क्लियर? जितने भी सीड्स होते हैं उनकी एक आउटर कवरिंग होती है। इज इट क्लियर? जितने भी सीड कोट्स होते हैं उसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे सीड कोट बोलते हैं। तो दे, तो व्हाई देयर बीक इज कर्व, सो टू ब्रेक द आउटर लेयर ऑफ द सीड, जो आउटर लेयर ऑफ द सीड है, सीड कोट, इसको ब्रेक करने में उन्हें इजी रहता है, क्योंकि उनकी बीक्स क्या होती है? कर्व्ड होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।